Hello friends, welcome to the course on Solid Edge 2020. In this video, we are going to learn about line command. So let's start. So friends, first I will go on the application button and then I will go on new and I will select a new file. I will select here isometric part file and I will select here template isometric. So I will select isometric standard template and then I will go on isometric part and then I will click on OK. So friends, here the isometric synchronous part file have been opened. Now here in this ribbon in the home tab we can see a line command. So this is the line command. When I move the cursor on this command, I can easily see the name of this command as a line 1. Now here I will click on this line command. So now the line command have been activated. Then I will select the plane first. Now there are three planes, XY, XZ and YZ planes. So here we can see these are the X axis, Y axis and Z axis. So with respect to this axis we can select any plane. Now if I have to select XY plane, then I will go or I will move the cursor in such a way that the rectangle should be created in between X and Y axis. Now here we can clearly see the rectangle have been created in between X and Y axis. So that means right now XY plane it has been selected. Now whatever the selected plane is there, if I have to lock that plane, अगर से मुझे वो प्लेन लॉक करना है मतलब वो प्लेन मुझे जो भी मैं स्केच ड्रॉ करने वाला हूं वो स्केच सिर्फ XY प्लेन में ही ड्रॉ करना अगर से मुझे है तो उस समय वो प्लेन मैं लॉक करूंगा. सो आई विल लॉक दैट प्लेन. सो हियर सिंपली देयर आर टू ऑप्शंस फॉर द लॉकिंग ऑफ that particular plane. First option is simply press F3 key on the keyboard. कीबोर्ड का जो F3 की है वो सिर्फ आपको प्रेस करना है यहाँ पे वो पर्टिकुलर प्लेन सिलेक्ट होने के बाद, या फिर आपका जो कर्सर है कर्सर सिर्फ ये लॉक बटन के ऊपर आपको लेके जाने का है. सो हियर सिंपली आई विल मूव द कर्सर on the lock button and then I will click on that lock button. So when I have to click, so when I got the message plane lock, so as soon as I got the message plane lock, I will click. So here you can see that I am getting the message here plane lock, so I will click here. So now XY plane it has been selected and it is locked. हमें यहाँ पे कैसे इंडिकेशन मिल रहा है, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि XY प्लेन के अराउंड एक ब्राउन कलर का रेक्टेंगल तैयार हुआ है. सो दैट मीन्स XY प्लेन इट हैज बीन सिलेक्टेड एंड हियर वी कैन सी द symbol of the locking of the plane it is coming. So that means XY plane it has been selected and it has been locked. Now whatever the sketch we will draw, that will be around only X and Y axis. So that will be only around the plane of X and Y axis. Now here
I will select that plane in the orthographic view. So in order to get the orthographic view of the XY plane, I will go on this quick view cube, and here I will select the top view surface. So that means here the orthographic view about the X and Y axis, it has been now looking. Now here I will draw one sketch. Already I have selected the line command. Now simply I will click here, and then I will move the cursor in the horizontal way. Now suppose I will take any dimension. Suppose that I have to take 100 mm dimension. So I will simply type 100. So that means 100 mm dimension it has been created. Now 100 mm dimension it has been created. Now I have to lock that dimension. That means whether I have to draw the line horizontally or inclined. So accordingly I have to move the cursor. मुझे हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना है या इंक्लाइन ड्रॉ करना है या वर्टिकली ड्रॉ करना है, एज पर माय रिक्वायरमेंट मुझे ये कर्सर मूव करना होगा. नाउ लेट अस कंसीडर दैट आई हैव टू ड्रॉ द लाइन of length 100 mm horizontal. So simply 100 already I have typed. Now if you have to consider any angle, you can type the value of angle here. Here we can see the angle right now it is 0, but जैसे जैसे मैं ये लाइन को मूव करता हूँ वैसे वैसे एंगल जो है अभी यहाँ पे 13.47 एंगल मुझे दिखाई दे रहा है, तो वो बढ़ता जाएगा. So right now I will select I will draw the line horizontal. So simply I will click here और एंटर की भी प्रेस किया तो भी वो लाइन ड्रॉ हो जाएगा. तो अभी हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ हुआ है. अब उसके बाद सिलेक्शन जो है लाइन कमांड जो है स्टिल इट इज एक्टिवेटेड. अगर से वो डीएक्टिवेट करना है तो मुझे कीबोर्ड का जो एस्केप की है वो प्रेस करना पड़ेगा. सो सपोज दैट मुझे वो की जो है वो डीएक्टिवेट करना है. सो सिंपली आई विल प्रेस एस्केप की. सो दैट मीन्स आफ्टर प्रेसिंग द एस्केप की द लाइन कमांड इट हैज बीन डीएक्टिवेटेड. अगर से फिर से मुझे लाइन कमांड लेना है तो मुझे फिर से लाइन कमांड के ऊपर जाना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा. Now again the line command it has been activated. Now I will draw here vertical line of certain length. I will start to draw the vertical line from the line where horizontal line ended. So from this point I am drawing here the vertical line. Say its length is say 60 mm. So I will put the dimension 60 mm and then I will press enter key. If I press enter key once again, then that line it has been drawn. Then again I will draw a line of 100 mm length horizontally. Then I will click here and then I will close the rectangle here. So I will draw a vertical line of length 60 mm so that जहां से मैंने लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट किया था वहां पे एंड हो जाएगा. सो अभी यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल कंप्लीट किया है. नाउ लाइन कमांड डीएक्टिवेट करना है. तो डीएक्टिवेट करने के लिए ऑलरेडी मैंने बोला था कि एस्केप की आपको प्रेस करना है या फिर दूसरा एक ऑप्शन है सिंपली यू क्लिक ऑन सिलेक्ट बटन. So once clicking on the select button it is done automatically. Any command including line, any command it can be deactivated. So now here with the help of line command I have drawn a rectangle here. Now I will click on home key so that isometric view it can be obtained. Now here the rectangle it has been drawn
and that rectangle it has been shaded. So that means this is the closed loop it has been generated and it can be extruded. अगर से क्लोज लूप बना है तो उसको हम एक्सट्रूड कर सकते हैं, मतलब ये अभी 2 डायमेंशनल व्यू है, इसको मैं 3D व्यू में कन्वर्ट कर सकता हूं. So how the 3-dimensional view can be obtained here? So simply I will go here on this schedule portion by selecting select command. So as soon as मेरा कर्सर ये रीजन में आता है तब ये जो आउटलाइन से जो भी मैंने स्केच ड्रॉ किया है वो हाईलाइट हो जाते हैं और यहाँ पे रीजन स्केच 1 ऐसा मैसेज आता है. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक रीजन क्रिएट हुआ है और अगर से रीजन क्रिएट हुआ है तो उसको मैं एक्सट्रूड कर सकता हूँ. सो आई विल क्लिक हियर ऑन दिस रीजन सो दैट रीजन इट विल बी सिलेक्टेड. तो यहाँ पे दोनों साइड में हमें यहाँ पे एरो दिखाई दे रहे हैं. Now I can extrude this region in the upper direction, in the lower direction or in both direction. तो मैं दोनों डायरेक्शन पे या फिर ऊपर की डायरेक्शन में या लोअर डायरेक्शन में मैं इसको एक्सट्रूड कर सकता हूँ. अगर से मुझे ऊपर की तरफ एक्सट्रूड करना है तो ये एरो के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और मेरा जो माउस का लेफ्ट की है वो क्लिक करूंगा, उसके मदद से क्लिक करूंगा और उसके बाद सिंपली ऊपर के डायरेक्शन में मैं इसको मेरा जो माउस है उसको ड्रैग करूंगा सो दैट ऑटोमेटिकली हियर वी कैन सी दैट द 3-dimensional व्यू और द ऑब्जेक्ट इट इज नाउ क्रिएटिंग. लोअर डायरेक्शन में भी मैं इसको एक्सट्रूड कर सकता हूं या अगर से मुझे दोनों डायरेक्शन में एक्सट्रूड करना है तो उसके लिए एक ऑप्शन है, जैसे कि ये रीजन मैं सिलेक्ट करूंगा, ये ऑप्शन एक्सट्रूड सिमेट्रिक. तो इसको अगर से मैं क्लिक करता हूं तो दोनों डायरेक्शन में सिमेट्रिकली एक्सट्रूड हो जाएगा. अब मैंने इसको क्लिक किया है, उसके बाद मैं एरो को क्लिक करता हूं और उसके बाद जब मैं माउस मूव करता हूं तो दोनों डायरेक्शन में, मतलब स्केच के दोनों डायरेक्शन में इक्वली अभी एक्सट्रूड हो रहा है. So suppose that I will consider here the dimension 40 mm and then I will press the enter key. So this is the 3-dimensional object. It has been created with the help of line command. So पहले line command हमने लिया, उसके बाद हमने एक sketch draw किया और वो sketch कंप्लीट किया, पूरा क्लोज लूप किया और उसके बाद वो जो रीजन सिलेक्ट हुआ था वो रीजन के ऊपर हमने क्लिक करके सिंपली उसको सिमेट्रिकली एक्सट्रूड किया दोनों डायरेक्शन में. अब इसमें और भी कुछ कमांड्स है. अब समझो मुझे इसमें कुछ रीशेपिंग करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्केच ड्रॉ करता हूँ, फिर से मैंने लाइन कमांड यहाँ पे सिलेक्ट किया. अब मैं ये वाला प्लेन सिलेक्ट करता हूँ तो ये लॉक के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, प्लेन सिलेक्ट हुआ है. अब यहाँ पे मैं एक स्केच ड्रॉ करता हूँ, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ कोई भी डायमेंशन का. लाइन कमांड, ये प्लेन मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे समझो ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया. Now one more sketch I have been drawn on the surface of this object. Now अगर यहाँ पे और एक रीजन क्रिएट हुआ है. Now suppose that if I click on this region, again this region it has been selected और ये एरो को मैं क्लिक करके इसको नीचे के डायरेक्शन में या ऊपर के डायरेक्शन में क्लिक कर सकता हूं. मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे जाऊंगा. अब जो सिमेट्रिक एक्सट्रूड है उसको मैं डिसेबल करूंगा और उसके बाद फिर ये एरो इसको क्लिक करके अगर से मैंने नीचे की डायरेक्शन में
एक्सट्रूड करना शुरू किया तो ये क्या हो रहा है, तो जो भी पहला वाला पार्ट था वो पार्ट का जो भी, तो यहाँ पे वो पार्ट का ये जो सरफेस है वो अभी रिमूव हो रहा है। अगर से ऊपर की डायरेक्शन में मैं मूव करता हूं तो यहाँ पे और एक सरफेस क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे सरफेस रिमूव हो रहा है। सो अकॉर्डिंगली एज पर आवर रिक्वायरमेंट, जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है, वी कैन ऐड द सरफेस और वी कैन रिमूव द सरफेस हियर। सपोज दैट आई विल रिमूव हियर द सरफेस, देन उसके बाद ये लाइन कमांड जो है उसके साइड में यहाँ पे एक एरो है, इसको अगर से मैं क्लिक करता हूं तो दूसरे भी लाइन के साथ जो कमांड यहाँ पे मुझे दिखाई देते हैं, कौन से कमांड है, तो यहाँ पे पॉइंट है। सो वी कैन, इफ आई हैव टू ड्रॉ द पॉइंट, देन आई विल सिलेक्ट दिस पॉइंट कमांड एंड देन आई कैन ड्रॉ द पॉइंट। पॉइंट मुझे ड्रॉ करना है तो उसके लिए ये कमांड है। उसके बाद उसके नीचे और एक कमांड है ड्रॉ। तो ड्रॉ कमांड का फायदा ये है, सपोज दैट आई विल सिलेक्ट दिस ड्रॉ कमांड, फ्री हैंड पेन जैसा हमारा वर्क करता है उस तरह से यहाँ पे ये कमांड वर्क करेगा। तो मैंने अभी ड्रॉ कमांड एक्टिवेट की है और मुझे ये सरफेस के ऊपर कुछ स्केच ड्रॉ करना है, तो वो प्लेन मैं पहले या वो सरफेस सिलेक्ट करूंगा। अभी ये सरफेस सिलेक्ट हुआ है, अब इसके ऊपर मैं कुछ स्केच जैसा पेन मेरा मूव करता है उस तरह से मूव करके एक क्लोज लूप यहाँ पे जनरेट करूंगा। तो यहाँ पे ये स्केच यहाँ पे जनरेट हुआ है। अब सिलेक्ट बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब इसके बाद ये क्लोज लूप है, मतलब यहाँ पे रीजन जनरेट हुआ है, तो उसको लेके मैं यहाँ पे सरफेस ऐड कर सकता हूँ या रिमूव कर सकता हूँ। तो जो भी मेरा रिक्वायरमेंट है जिसमें लाइंस नहीं है या फिर डेफिनेट रेडियस का आर्क नहीं है, तो वो समय मैं ये ड्रॉ कमांड यूज करके जो भी मेरा स्केच है वो यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूं, कोई भी स्केच। इस तरह से। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ड्रॉ कमांड। उसके नीचे और एक कमांड है फ्री स्केच। तो फ्री हैंड स्केच यहाँ पे हम कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं ये कमांड की मदद से। तो फ्री स्केच कमांड अभी यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है। सो आई विल ड्रॉ एनी फ्री स्केच हियर। उसके लिए मुझे माउस का लेफ्ट की प्रेस करके रखना है और स्केच ड्रॉ करना है। यहाँ पे तो जो भी सरफेस आपने सिलेक्ट किया है उसके ऊपर you can draw the free sketches. So friends, that's all from the line command. In the next video we will see the next command, rectangle. Thank you.